A very good morning to all my dear students. Today we are just going to start our new part from the last lesson, that is Reach for the Top. And in this part we are just going to read about Maria Sharapova, a Russian girl who just reached the summit of women's tennis when she was barely 18. It means in the previous video or the first part 1 we just come to know that how the Santosh Yadav reached for the top. It means she reached for the top with the lots of struggle, with the lots of enthusiasm, and everything which else need for the reach for the top. And that particular top refers to the mountain peak, Mount Everest, the highest peak in the world. And she just scaled that particular top twice. And same, you can see it with the different meaning. Here, the top refers to the summit of the women's tennis. That means she hold the first position or the first rank in the women's tennis when even she was barely 18 years old. So, here you will come to know about Maria Sharapova. So, you have to draw a comparison between her after reading this very text and also Santosh Yadav. So, make a comparison and you will come to know that how struggle is the same even for the different fields. But you will find out that some of the determination, enthusiasm, encouragement, all these things are involved to submit themselves, or you can say to the first point of the world. So you need what they kind of you can say honestly done their job with their particular field. So now before reading the real text we have to do the activity which you have just covered in the blue box, but this activity will come to know whenever we are just going to read out this word and find out the meaning of that word from out of the text, and then we have to match the following. Here on the left hand side the words are given, and on along with them on the right hand side there is meaning. So we have to match these following words to their following meanings after reading the text. So this is your activity. So you have to do this activity in your fair notebook, and after that we have to look for the questions which will arise by you throughout the text when I will start that. The first question you will arise that why was Maria sent to the United States, that means America? Why did her mother go with her? Why didn't? It means at that particular time when she was just referred to the United States, her mother was not with her. And why? Why she was not with her? We have to give the answer of this question. What are her hobbies? What does she like? What motive her to keep going? These kind of questions will come into your mind. We have to come across all these questions throughout the text. Now let us consider with the first of the paragraph. Here says, there is something disarming about Maria Sharapova, something at odds with her beauty, with her ready smile and glamorous attire. It means, now here the particular person wants to say कि सारिया मारापोवा एक अलग ही चीज़ की विकल्प से मिलकर बनी हुई थी, क्योंकि उनके स्माइल और उनके ग्लैमरस अटायर में बिल्कुल कोई सिमिलैरिटी नहीं थी. इट मीन्स उनकी स्माइल काफ़ी रिजिड थी, स्टोन फेस था. शी नेवर यूज टू इवन स्माइल लाइक अ सिंपल गर्ल, बट शी यूजुअली वेयर द ग्लैमरस अटायर. आपने भी देखा होगा टेनिस प्लेयर्स बहुत अच्छी अटायर्स यू कैन से कपड़े पहनते हैं. एंड यही बात है कि हमारी लेसन स्टार्टिंग हो रही है कि मारिया शारापोवा में कुछ तो अजीब था कि उसकी जो रेडीमेड स्माइल थी और उसका ग्लैमरस अटायर था. And that something in her lifted her on Monday 22 August 2005 to the world number 1 position in the women tennis. अब यही बात थी, इसी कुछ और इफेक्ट्स के कारण उसको 22 अगस्त 2005 को वर्ल्ड की नंबर 1 वुमेन टेनिस प्लेयर का खिताब मिला. ऑल दिस हैपन इन ऑलमोस्ट नो टाइम. ये बहुत जल्दी हुआ. आपको याद रखनी है ये डेट ऑन विच शी जस्ट गॉट द नंबर 1 पोजीशन इन द वुमेन टेनिस. It was the day of Monday and date was
22 August 2005. All this happened in almost no time. Poised beyond her years, the Siberian-born teenager took 4 years as a professional to reach the pinnacle. अब उन्होंने 4 साल इतनी ज़ोरदार मेहनत की कि ये साइबेरियन लड़की जो टीन एज थी अब वो अपने मुकाम पर पहुंच चुकी है. अब यहाँ साइबेरियन क्यों बोला है हमारी सारापोवा को? Now let us get to know. In the second paragraph, we come to know that how the rapid ascent in a fiercely competitive world began 9 years before, with the level of sacrifice with few children would be prepared endure. शायद हार्डली शी वॉज ऑफ 9 years old जब उन्होंने बहुत सारे सेक्रीफाइस किए, जबकि जहाँ बच्चे अपने आप को संभालना सीखते हैं तब मारिया सारापोवा ने बहुत सारे सेक्रीफाइस करने शुरू कर दिए. For example, little Maria had not celebrated her 10th birthday when she was packed off to the train in the United States. उन्होंने अपने परिवार के साथ अपना 10वां जन्मदिन भी नहीं मनाया क्योंकि उनको ट्रेन में बैठकर यूनाइटेड स्टेट्स जाना था अपनी फर्दर प्रैक्टिस के लिए. That trip to Florida with her father, Yuri is the name of her father, launched her on the path to success and stardom. अब यूरी ने उसके पिताजी ने ट्रिप टू फ्लोरिडा में उसको ये पाथ का यानी इस सफलता का पथ दर्शाया और स्टारडम की तरफ यानी कि पूरी फेमस बनाने के लिए उन्होंने उसको लॉन्च किया. बट इट वॉज also required a heart-wrenching 2-year separation from her mother Yelena. What is the name of the mother? Here's the name of the mother is Yelena, and वो अपनी माँ से 2 साल दूर रही. The latter was compelled to stay back in Siberia because of visa restrictions. अब साइबेरिया में मारिया सारापोवा रहती थी, उनकी सारी फैमिली साइबेरिया में ही रहती थी, इसलिए यह साइबेरियन बुलाया गया है. And you can say because of the visa restrictions. अब वीज़ा रिस्ट्रिक्शन की वजह से उसकी मम्मा को वहीं 2 साल रहना पड़ा. The 9-year-old had already learned an important lesson in life. The tennis excellence would only come at the price. हम 9 साल की बच्ची ने ये बात सीख ली थी कि अपनी ज़िंदगी में कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा, क्योंकि हर एक चीज़ की एक कीमत होती है. आप अगर अपनी टेनिस में एक्सेलेंस पाना चाहते हो, महारत हासिल करना चाहते हो, तो आपको कुछ प्राइस पे करना होगा. थर्ड पैराग्राफ सेज, I used to be so lonely. मारिया सारापोवा रिकॉल्स, वो कहती है जब मैं छोटी थी और मैं 9 साल की यूएस आ गई थी तब मुझे बहुत लोनली फील होता था. आई मिस्ड माई मदर टेरिबली. मैं मेरी मम्मा को मैं बहुत बुरी तरीके से याद करती थी. मेरे पिताजी माई फादर वॉज वर्किंग एज मच एज ही कुड टू कीप माई टेनिस ट्रेनिंग गोइंग ऑन. वो मेरी टेनिस ट्रेनिंग के लिए दिन रात मेहनत करते रहे. सो ही couldn't see me either. इसलिए उन्होंने मुझे कभी ध्यान से देख भी नहीं पाए. On the fourth paragraph says, because I was so young, मैं बहुत छोटी थी, I used to go to bed at 8 p.m. अब वो हॉस्टल में रहती थी तो वो 8 बजे ही सोने चली जाया करती थी. The other tennis people means students जो भी सीख रहे थे वहाँ कैंडिडेट्स थे, would come in at 11 p.m. and wake me up, order me to tidy up the room and clean it. अब जो अदर टेनिस पीपल्स थे, जो यू कैन से मेरे से सीनियर्स थे, वो जनरली क्या करते थे, 11 बजे आती रात को और मुझे ऑर्डर करते कि वो उनके रूम को साफ़ कर दे. इंस्टेड ऑफ लेटिंग दम डिप्रेस मी, आई बिकेम मोर क्वाइटली डिटरमाइंड एंड मेंटली टफ. अब उनकी जितनी भी बातें थी मैं उनको अपने ऊपर एक डिप्रेशन के तौर पर नहीं लेने देती थी, क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों ने ही डिटरमिन्ड बनाया और मेंटली टफ बनाया है. I learned how to take care of myself. I never thought of quitting because I know what I wanted. मैंने कभी भी क्विट नहीं किया. मैंने खुद की देखभाल करना सीखा और जो मैं चाहती थी मैंने वही किया. When you come from nothing and you have nothing, then it makes you very hungry and determined. जब आपके पास कुछ ना हो और आपके बैकग्राउंड से भी कुछ ना हो तो ये आपको बहुत ज़्यादा हंग्री, किसी चीज़ के लिए भूखा यानी भूख को बढ़ा देता है और उस दृढ़ निश्चय को भी बढ़ा देता है. आई वुड हैव पुट अप विद मोर ह्यूमिलेशन सल्ट देन टू स्टीडफास्टली परस्यू माई ड्रीम्स. मैंने बहुत सारी ह्यूमिलेशन सही, बहुत सारी प्रताड़नाएँ सही जो मेरे सीनियर्स ने मेरे साथ की, बट मैंने उन सभी को एज ए डिटर्मिनेशन अपने साथ रखा
और मैंने कभी भी उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया. Now, the sixth paragraph says, the toughness runs through Maria Sharapova even today. अब वही टफनेस जो अपने कॉलेज डेज में, यू कैन से हॉस्टल डेज में उसके पास हुआ करती थी, वो आज भी मारिया शरापोवा के अंदर दिखाई देती है. इट वॉज द की ऑफ हर बैगिंग द वुमेन्स सिंगल्स क्राउन एट विंबलडन इन 2004. अब उन्होंने सबसे पहला जो ताज पहना वो था विंबलडन में 2004 में सिंगल्स वुमेन में टॉप पर आना. एंड टू हर मेटेरिक राइज टू वर्ल्ड नंबर 1 ऑन स्पोर्ट द फॉलोइंग ईयर. और नेक्स्ट ईयर ही वो वुमेन्स टेनिस में पहले नंबर पर नेक्स्ट ईयर आ गई. While her journey from the frozen plains of the Siberia to the summit of women's tennis had touched the hearts of tennis fans. Now, seventh paragraph says, अब जो उसकी जर्नी थी फ्रॉम साइबेरिया, जो साइबेरिया से वो आए थे, वहाँ बिल्कुल ठंड पड़ती है, द समिट ऑफ वुमेन्स टेनिस. अब साइबेरिया में इतनी सहूलियत नहीं है कि वहाँ कोई लड़की या फिर यू कैन से चीज़ें जो हैं अपने समिट यानी अपनी पीक को छू सके. तो यहाँ से लेकर और उसने अपने फैंस के दिलों में जो जगह बनाई है वो बहुत यू कैन से इनकरेज करने वाली जर्नी है. फॉर द यंग यू कैन से फॉर द यंगेस्ट herself there appears to be no room for the sentiments. ये बात खुद सारिया शरापोवा ने कहा है कि जो जगह मैंने आज अपने फैंस के दिलों में बनाई है उनमें अगर मैं फिर भी सेंटिमेंट्स अपने दिल में रखती तो शायद मैं उनके दिलों में जगह नहीं बना पाती. सेंटिमेंट्स का मतलब यहाँ है वो चीज़ें कि मुझे कोई डिप्रेस कर जाए, मैं वो जल्दी सेंटी हो जाऊँ और रोने लगूँ एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स. The straight looks and the answers she gives when asked about her ambition make it amply clear that she very considers the sacrifice worth it. उनके जो सिंपली आंसर्स हैं, जो डायरेक्ट वो क्लियर आंसर्स देती है, उनके जो अंदर के एम्बिशंस हैं, इन सब से हमें पता लगता है कि उन्होंने जो अभी तक सेक्रीफाइस किए हैं वो कितना वर्थ है. आई एम वेरी वेरी कम्पिटिटिव. मैं बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव हूँ. आई वर्क हार्ड एट वट आई डू. इट्स माई जॉब. मेरा काम ही यही है कि मैं जो कर रही हूँ उसमें अपना पूरा दूँ. दिस इज़ हर मंत्रा फॉर द सक्सेस. ये उसका मंत्र था सफलता के लिए. एट्थ पैराग्राफ सेज, दो मारिया शारापोवा स्पीक्स विद अ प्रोनाउंस्ड अमेरिकन एक्सेंट. यद्यपि मारिया शारापोवा अमेरिकन एक्सेंट के साथ बोलती हैं बातें या इंटरव्यू जो भी देती हैं तो वो अमेरिकन एक्सेंट के साथ देती हैं. शी प्राउडली यू कैन से प्रेड्स हर रशियन नेशनलिटी. और अपनी रशियन नेशनलिटी जो साइबेरियन नेशनलिटी है उसको प्राउडली प्रेड कहते हैं. अब रशिया में ही क्या है, साइबेरियन कंट्रीज. क्लियरिंग ऑल डाउट्स, शी सेज आई एम रशियन. सारे डाउट्स क्लियर करके वो कहती है मैं रशियन हूँ. इट्स ट्रू दैट द यूएस इज़ अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ. मैं जानती हूँ कि यूएस मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है. बट आई हैव रशियन सिटीजनशिप. बट मेरे पास रशिया की सिटीजनशिप है, मैं वहाँ की निवासी हूँ. माई ब्लड इज़ टोटली रशियन एंड आई विल प्ले द ओलंपिक्स फॉर रशिया इफ़ दे वॉन्ट मी टू. अब वो खेलती किसके लिए थी फ़िलहाल, यूएस के लिए, क्योंकि यूएस से उन्होंने बहुत कुछ पाया था. बट उनकी जो इच्छा है उन्होंने जाहिर कर दी है कि उनके अंदर एक रशिया का ब्लड है और अगर वो चाहेंगे तो मैं उनके लिए टेनिस में ज़रूर खेलूँगी ओलंपिक्स में. नाउ नाइन्थ पैराग्राफ सेज, लाइक एनी अदर नंबर ऑफ द टीनेज सेंसेशन मारिया शारापोवा लिस्ट्स फैशन, सिंगिंग, डांसिंग एज हर हॉबीज़. अब एक सिंपली जो टीनेज गर्ल होती है जितने सेंसेशन उसके अंदर होती हैं वैसे ही मारिया शारापोवा के अंदर भी थी. उनका फैशन, उनकी सिंगिंग, उनकी डांसिंग और उनकी हॉबीज़ सब कुछ बहुत सिंपल था, एक ऐसे टीनेज गर्ल की तरह ही. नाउ शी लव्स रीडिंग द नॉवल ऑफ आर्थर कैनन डॉयल. उनको जो आर्थर कैनन डॉयल है वो हॉरर स्टोरीज़ लिखते हैं. उनको वो स्टोरीज़ जो है मिस्टीरियस वाली, एडवेंचर्स वाली, स्ट्रेंजनेस वाली, ये सारी स्टोरीज़ उनको पढ़ना पसंद है. हर फॉन्डनेस फॉर सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन्स अपीयर्स टू एट ऑल. अब जब उनको पढ़ाई का शौक़ है तो दूसरी तरफ उनको जो एडवांस होने का शौक़ है अपनी गाउन्स को लेकर, जो उसका पहनावा है उसको लेकर,
वो बिल्कुल मैच नहीं करता। उनको बहुत शौक़ है कि वो अपने गाउन्स को अलग अलग रंग का, अलग अलग तरीके का लेकर रखें। Appears at odds with her love of pancakes with chocolate spread and fizzy orange drinks. उनको जो खाने की चीज़ें पसंद हैं वो है पैनकेक्स जिसपे चॉकलेट स्प्रेड किया हुआ हो, फिज़ी ऑरेंज ड्रिंक्स। अब एक ऐसी यू कैन सी वीमेन जो दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन है, उसकी जो सिंप्लिसिटी है उसमें हम देख सकते हैं कि भाई हमारे पास बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ है मारिया शारापोवा की जो टीनेज गर्ल से मैच करती है। तो अगर मारिया शारापोवा इस चीज़ को कर सकती है तो हम क्यों नहीं। देन here the 10th you can say paragraph says Maria Sharapova cannot be pigeonholed, categorized. Her talent, unwavering desire to succeed and readiness to sacrifice have lifted her to the top of the world. अब मारिया शारापोवा अगर वो पिजन होल्डेड होती, यानी कि वो बिल्कुल दुबक कर बैठने वाली होती, तो आज उसकी जो सक्सेस के परचम लहरा रहे हैं शायद वो नहीं लहरा पाते। तो इसलिए वो कभी भी पिजन होल्डेड नहीं हो सकती। Few would grudges her the riches is now reaping. कुछ कहते हैं कि जो उन्होंने आज तक खोया है, यानी जो भी बोया है उन्होंने सही काटा है। इट मीन्स बहुत अच्छा उन्होंने पाया है अपनी सेक्रीफाइसेस से। बट कुछ कहते हैं, कुछ लोग ग्रजेस में उसको थोड़ा नीचे की तरफ दिखाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि उसके पास बहुत पैसा था इसलिए वो आज इतनी टॉप पर है। नाउ दिस इज़ वॉट शी हैज़ टू से अबाउट द हर मॉनेटरी गेन्स। अब वो ये बात जो लोग उसके मॉनेटरी गेन्स पे कहते हैं कि उसके पास बहुत सारा पैसा है इसलिए वो आज मज़े ले रही है और सारे पैसों के कारण ही उसकी ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, दिस इज़ व्हाट शी हैज़ टू से। उन्होंने इसी बात पर अपने इंटरव्यू में कहा, ऑफ कोर्स मनी इज़ मोटिवेटिव, यस मैंने मनी के लिए ही किया था ये और मोटिवेशन इसी से मिलता है। टेनिस एक बिज़नेस है, एक स्पोर्ट है, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आप वर्ल्ड में नंबर 1 हो। वो इसलिए नहीं हो सकते कि आपके पास पैसा है, पैसे से ऐसी चीज़ें नहीं खरीदी जा सकती। जब आपके पास मेहनत होती है तो आपके पास जुनून होता है, तो आपको यही सारी चीज़ें हैं जो सीखनी है। सो दैट्स द ड्रीम दैट कीप मी गोइंग। बस ये ड्रीम था जो मुझे हमेशा आगे बढ़ने का हौसला देता था। तो जिसका मेन सपना क्या था कि उसको वर्ल्ड में नंबर 1 होना है, ना कि मॉनेटरीज आर द सेकेंड थिंग फॉर मारिया शारापोवा। सो हियर इज़ द एंड ऑफ द टेक्स्ट स्टूडेंट्स, बट वी हैव टू कंपेयर मारिया शारापोवा टू आवर संतोष यादव। आप लोगों ने इन दोनों में इतनी कंपैरिजन्स देखी होंगी कि दोनों ने बहुत सेक्रीफाइस किए, दोनों ने समाज के खिलाफ़ चीज़ों को यू कैन से, जहाँ मारिया यू कैन से अपनी संतोष यादव ने समाज के खिलाफ़ जाकर रूढ़िवादी रीति रिवाजों से बढ़कर एक अपनी एजुकेशन पूरी की, वहीं अपनी मारिया शारापोवा ने सेक्रीफाइस की बहुत बड़ी लिस्ट तैयार कर रखी है। अब हमें पता चलता है कि अगर हमारा सर्कमस्टांस सोसाइटी मैटर यू कैन से अच्छा नहीं है तो हम वहाँ पर अपने लिए बोल सकते हैं और बोलकर संतोष यादव की तरह आगे बढ़ सकते हैं। एंड दूसरी बात, हमारे पास जो मारिया शारापोवा हैं उन्होंने सेक्रीफाइस किया, कभी भी अपने आप को डल नहीं होने दिया, चाहे कितनी भी उसको प्रताड़नाएं मिली या फिर कितना भी उसको डिप्रेशन मिला। शी नेवर लेट हर डाउन एंड शी नेवर एवर अपसेट विद ऑल दिस थिंग्स, बल्कि उन्होंने अपने आप को इससे बंधे हुए रखा और डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ती रही। वर्ल्ड नंबर 1 होना इट्स नॉट ए ईजी कंसेप्ट, स्पेशली फॉर द टीनेज गर्ल एट द अप्रोक्सीमेशन ऑफ 18। तो जब आप 18 साल के होते हो तो आप 12th पास करते हो, बट एट दैट टाइम मारिया शारापोवा गोट द फर्स्ट पोजीशन इन द वर्ल्ड। सो यू हैव टू मेक सच काइंड ऑफ मोटिवेशन फ्रॉम आवर मारिया शारापोवा कि उन्होंने अपनी मम्मा से इतनी दूर सेक्रीफाइस किया। पापा थे वो हमेशा कमाने के लिए लगे रहते थे ताकि उसकी जो प्रैक्टिस है वो कभी रुके ना, तो उन्होंने भी अपने पेरेंट्स के लिए काफ़ी हद तक अपने सेक्रीफाइस को बिल्कुल ट्रू प्रूव किया है और उनके सेक्रीफाइसेस को भी दुनिया के सामने एक ट्रू यू कैन से एक आइडल माना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कंपैरिजन ऑफ मारिया शारापोवा एंड संतोष यादव।
सो इन दोनों में जो मेन सबसे कॉमन चीज़ थी वो थी डिटर्मिनेशन, एंथुजियाज्म, encouragement and all these things. So यहाँ पर आता thinking about the text now. Now working as small group, you have to make yourself a group as a 4 to 5 students. Go back over the 2 passages on Santosh Yadav and Maria Sarapova and complete the table given with the relevant phrases and sentences. यहाँ आपको उनकी यू कैन से सबके जो पहले 2 पैसेजेस हैं आपको उनमें what you have to do, you have to find out all these things. जैसे यहाँ लिखा हुआ है देयर हम्बल बिगनिंग. अब उनकी जो बिगनिंग थी वो किस तरीके की थी, संतोष यादव की कैसे थी, हमारे सरापोवा की कैसे थी. यू हैव टू मेंशन ऑल दिस थिंग्स. देयर पेरेंट्स अप्रोच, संतोष यादव के पेरेंट्स किस तरीके के थे और मारिया सरापोवा के जो पेरेंट्स थे वो किस तरीके के थे, यानी उन्होंने उन दोनों के लिए क्या क्या किया था. देयर विल पावर एंड स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू सक्सीड दोनों में कॉमन थी. अब संतोष यादव ने ये किस तरीके से दर्शाया है कि उसकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग थी और हमारे सरापोवा ने किस तरीके से दर्शाया है. यू हैव टू मेंशन ऑल दिस थिंग्स. नाउ एविडेंस ऑफ देयर मेंटल टफनेस, आपको ये भी बताना है कि उनके एविडेंसेस देने हैं उनकी मेंटल टफनेस के. देयर पैट्रियटिज्म, उनके पैट्रियटिज्म की तरफ भी. अब इफ़ आई विल गिव द एग्जाम्पल ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग हियर, देन आई विल गिव द fourth one, evidence of their mental toughness. In Santosh Yadav, when she was climbing the Mount Everest, she found you can say a person who was just going to die because there was no oxygen and the oxygen cylinder has been worn out. तो उस टाइम पर उन्होंने अपनी ऑक्सीजन देकर उसकी जान बचाने की कोशिश की बट वो मर गया. आफ्टर दैट इवन उन्होंने अपनी ज़िंदगी में दूसरे लोगों की सहायता करना नहीं छोड़ा. उसके बाद उन्होंने और यू कैन से जितने भी इंसान उसके रास्ते में आए तो उसकी मेंटल टफनेस के कारण उन्होंने उनकी जान भी बचाई और अपनी मेंटल टफनेस के कारण ही वो क्लाइंब कर पाई माउंट एवरेस्ट को. और हमारे मारिया सरापोवा मेंटल टफनेस तब है जब उन्होंने अपने यू कैन से हॉस्टल एरिया में 8 बजे सोकर 11 बजे उठकर कमरे की सफाई की अपने सीनियर्स के कहने पर, बट अपने आप को कभी डिप्रेस नहीं होने दिया और दुनिया की कभी नहीं सुनी. उन्होंने जो सुना अपनी सेक्रीफाइस की सुना, अपने पेरेंट्स की सुना. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मारिया सरापोवा एंड संतोष यादव. यू हैव टू मेक ए कंपेरिजन बिटवीन दैम टू. नाउ थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज हियर सेज, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. दे हैव 2 clause or 2 parts each with their subjects and verb phrase. Often one part italicized tells us when or why something happened. हियर यहाँ हमें बताया गया है कि कुछ चीज़ें हुई हैं, कब और कैसे हुई हैं. यू हैव टू जो हमें यहाँ आइडलाइज किया गया है यानी कि जैसे जो कि कैलिब्री में नहीं लिखा गया है. सो फॉन्ट इज़ चेंज्ड आफ्टर सम ऑफ द वर्ड्स. सो यहाँ पर हमें अपने आप को सब्जेक्ट और वर्ब से फ्रेजेस जितने भी दिए गए हैं तो हमें उनको देखना है. फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट इज़ हियर, आई रीच द मार्केट व्हेन मोस्ट ऑफ द शॉप्स हैड क्लोज्ड. टेल अस व्हेन आई रीच्ड. Now you have to give the answer when you reached. तो आपको जो क्वेश्चंस पुट आउट हुए हैं उनको आपको पूरा करना है और उस तरीके से आगे लिखना है फॉर नोटबुक में. The first part of this very thing says, identify the 2 parts in the sentence below. The underlying that part gives us the information in bracket as shown above. The first point it says, where other girls wore traditional Indian dresses, Santosh prefers shorts. Contrast her dresses with the others. अब आपको बताना है कि उसकी जो ड्रेस थी, यानी हमें बताया नहीं गया कि दूसरे वाले कैसे पहनती थी, तो आपको सर्च करना है कि जहाँ संतोष यादव पैदा हुई थी उस टाइम पे वहाँ की अदर जो लड़कियाँ थी वो क्या पहनती थी और संतोष जहाँ शॉर्ट्स पहनती थी तो दूसरी लड़कियाँ क्या पहनती थी. तो ऐसे ही आपको ये 3 और 4 पॉइंट्स जो है वो कवर करने हैं. So now here is the second part. He says, now rewrite the pairs of the sentences given below as one sentence. यहाँ first है, grandfather told me about the old days. All books were printed on paper then. मेरे grandfather ने बताया था. जैसे यहाँ पे है rewrite करना है pair of sentence को इनको एक sentence में बनाना है. तो you have to make the sentences 2 sentences into 1. Just write now in your notebook. This is your activity and here the dictation. डिक्टेशन इज़ हियर दैट आपको कोई भी वर्ड बोला जाएगा तो यू हैव टू स्मेल इट डाउन. तो यहाँ है रीड द पैसेज. इस पैसेज को आप रीड आउट करेंगे एंड योर टीचर विल हैव टू डिक्टेट बट यू हैव टू डू वन थिंग दैट जो भी आपको सबसे आपकी एक्टिविटी ये भी है कि आपके ही घर के मेंबर कोई आपसे डिक्टेट करके बोलेगा. आपको एक चीज़ें
यू कैन से अपने अकॉर्डिंग जो पंक्चुएशन मार्क्स है, पैराग्राफिंग है, वो अपने अकॉर्डिंग बनानी है. आफ्टर दैट आपको इससे मैच करना है कि आपने पैराग्राफ राइटिंग जो है वो सही लिखी है या नहीं. Imagine that you are Santosh Yadav or Maria Sharapova. You had invited to speak to All India Girls Athletic Meet as chief guest. Prepare a short speech to motivate the girls to think and big dream and make an effort to fulfill their dreams, not allowing difficulties or defeat or to discourage them. The following words and phrases may help you. Self-confident, confidence, so sure of yourself. तो आपको क्या करना है, अगर आपको मारिया शारापोवा या फिर आप संतोष यादव होते और आपको ऑल इंडिया गर्ल्स एथलेट मीट में बुलाया जाता एज पर द स्पीकर चीफ गेस्ट के तौर पर, तो आपको एक स्पीच तैयार करनी थी कि लड़कियों को मोटिवेट करना है, उनके जो बड़े बड़े ड्रीम्स हैं कि वो उनको किस एफर्ट से अपने फुलफिल कर सकती हैं, आपको ये बताना है. नॉट अलाउिंग डिफिकल्टीज और डिफीट टू डिस्करेज दैम. द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस में हेल्प यू. अब आपको ये सारे वर्ड्स जो हैं अपने स्पीच में लिखने हैं एंड यू हैव टू राइट डाउन द स्पीच बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन विद द स्पीच. यू हैव टू प्रिपेयर ऑल दिस थिंग्स. नाउ here's the writing skill says working in pair, go through the table below that given you information about the top women tennis since 1975. Write a short article for your school magazine contrasting the players in the terms of their duration of the top. Mention some qualities that you may think have the responsible for their brave or the long stay at the top spot. तो यहाँ क्या है कि आपको सबसे ज़रूरी चीज़ है ये बताना कि जितने भी टॉप रैंक्ड वुमेन प्लेयर आज तक रही हैं 1975 से 2005 तक, आपको इस टेबल को एलैबोरेट करना है, एक आर्टिकल लिखना है कि हाउ द मारिया शारापोवा just come to the first and who's the first who just won the first position on 3rd November 1975, that is Chris Evert. The second activity says which of these words would you use to describe Santosh Yadav. Find reasons in the text to support your choice and write a couple of paragraph describe the संतोष कैरेक्टर. अब यहाँ संतोष यादव के लिए है. अगर हम कंटेंटमेंट की बात करें तो वो संतुष्ट कितना थी अपनी लाइफ से. यू हैव टू मेंशन ऑल दिस थिंग. कितनी डिटरमाइंड थी, कितनी रिसोर्सफुल थी और कितनी पोलाइट थी नेचर में, कितनी एडवेंचरस थी. सो यू हैव टू डू ऑल दिस थिंग्स in your manner. Now here we have another a poem here, but before reading this very text of the poem, as I want to tell you that one thing, that is that your text has been done, so you have to do it all in your fair notebook. Now let us consider on killing a tree. So here we come to know one thing, that on killing a tree. This has been written by G.V. Patel. So on killing a tree is such a nice poem that you must have observed people cutting down the trees, but can they kill a tree? तो यहाँ जो हमारे जी.वी. पटेल हैं वो हमें ये रेफर करना चाहते हैं कि किस तरीके से लोग सिर्फ पेड़ों को काट तो देते हैं, क्या उन्हें मारते भी हैं? क्या ये ईजी है ये करना? Let's read the poem and find out what the poet says on killing a tree. Now, poet जो है वो ट्री के लिए सिंपैथाइज है. वो कहता है कि अगर हम इसको काट रहे हैं तो क्या हम इसको मार भी रहे हैं? क्योंकि एक इंसान को मारना ही सच ए ईजी टास्क, बट काट कर उसको अधमरा करना इज़ नॉट द ईजी वन, बिकॉज वो अच्छा नहीं है. इट्स नॉट द सिंपैथेटिक. सो यहाँ एम्पैथी के तौर पे हमारे जो पोइट हैं इस पोम में आपको दर्शाते हुए नज़र आएंगे द सेंटिमेंट्स ऑफ एम्पैथी. इट हियर द फर्स्ट स्टैंजा सेज इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री. ये एक ट्री को यानी एक पेड़ को मारते हुए बहुत टाइम लगता है. इट्स नॉट ए सिंपल जैब ऑफ द नाइफ. ये सिर्फ एक चाकू की धार से नहीं कटेगा. विल डू इट. इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ. अब ये क्या है? ये सिंपल से नाइफ के यानी चाकू की धार से नहीं कटेगा. करके देखोगे तो भी नहीं होगा. फिर भी ये अगर आप इसे काट भी दोगे किसी तरीके से तो ये धरती में से दोबारा से सारी चीज़ें कंज्यूम करके, सॉइल, वाटर, सनलाइट ये सारे कंज्यूम करके दोबारा से ग्रोन अप हो जाएगा. राइजिंग आउट ऑफ इट, वो धरती से वापस आ जाएगा. फीडिंग अप टू इट्स क्रस्ट, absorbing years of sunlight, airs, water, and out of its leprous hide, sprouting leaves. What do you mean by the leprous here? Leprous refers to the
you can say discolored bark generally found outside the tree. It's a kind of skin of tree. So here's a leprous hide means अब आपको जो भी leprous hide थी इसकी इतने सालों तक सनलाइट, एयर, वाटर को अब्जॉर्ब कर रही थी अपने क्रस्ट से, तो अब वो क्या करेंगे, स्प्राउटिंग करेंगी, यानी कि लीव्स को पैदा करेंगी, उनकी कली बनकर बाहर आएगी, वो स्प्राउट हो जाएंगे. सो नाउ यहाँ पहले पैराग्राफ में हमें कहना चाहता है कि आप किसी भी तरीके से ट्री को मार नहीं पाओगे, वो दोबारा अपनी ज़िंदगी में ग्रोन अप हो जाएगा. सो हैक एंड चॉप, अब वो हमें बताता है कि अब तुम्हें क्या है, पता चल गया कि वो मरेगा नहीं, तो अब तुम क्या करो कि यू हैव टू हैक एंड चॉप. तुम एक एक्स लो, उसे तेज़ धार से पिनाओ और एकदम से उसको चॉप कर दो, यानी टुकड़ों टुकड़ों में काट दो. बट दिस अलोन वॉन्ट टू डू इट, बट तुम अकेला नहीं कर पाओगे इससे. नॉट सो मच पेन विल डू इट, और शायद तुम इतना हार्डवर्क करोगे फिर भी शायद यू कैन से उस चीज़ को पूरा पेन के साथ काटोगे फिर भी वो चीज़ ना हो पाए. तो वो हमें बता रहा है कि भाई अगर हम इतना ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं एक ट्री को मारने में, जो कि हमारे पास जो ट्रीज़ हैं वो बहुत कम मात्रा में हैं, और ट्री हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं ये भी हम सब जानते हैं. तो वो एक सटायर कर रहा है, कटाक्ष कर रहा है उन लोगों पे जो इसको काट देते हैं. नाउ हमें यहाँ कहा गया है कि द ब्लीडिंग barks will heal and from the close to the ground will rise curled green twig miniature boughs which if unchecked will expand again to former size. अब यहाँ क्या है, यहाँ फिर से कहता है कि अगर आप उसे टुकड़ों में भी काट दोगे तो जो उसके अंदर से जो ब्लीडिंग बार्क होगी, यानी कि जो पानी निकलता है, खून निकलता है, या मेटाफोरिक बोला गया है क्योंकि ब्लीड जो होता है वो खून निकलना होता है, और खून किस में से निकलता है, एक लिविंग थिंग्स में से. बट हमारे पास जो ट्री है वो लिविंग थिंग तो है बट उसके अंदर से खून नहीं निकलता है. तो ये कहते हैं जो ग्राउंड पे जितना भी क्लोजनेस हो, उसके चीज़ें पड़ी हुई हैं, ग्रीन ट्विग्स हुई हैं, वो उसके ब्लीड से क्या हो जाएंगी, राइज हो जाएंगी. और जो छोटी छोटी बॉल्स हैं अगर आपने उसे चेक नहीं किया तो वो सारी जगह फैल जाएंगी और पहले की तरह ये ट्री बड़ा हो जाएगा. देन नो, वो ये कहता है कि शायद आप इस बात को नहीं मानते. नहीं, द रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट. अब मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना चाहिए. शायद आप इस बात पे यकीन करो नहीं करो, तो आपको उसकी जो रूट है यानी कि जड़ है वो आपको निकाल कर बाहर फेंकनी होगी, तभी मरेगा. आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, जो अर्थ इसका पालन पोषण कर रही है उससे इसको बाहर निकालना ज़रूरी है. इट इज़ टू बी ड्रॉप्ड, टाइड एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट और पुल्ड आउट इंटायरली. इसको आप चाहे रस्सी से बांध के या कैसे भी इसको खींच के इसको स्नैप आउट करके इसको पूरी तरीके से बाहर निकालो. आउट फ्रॉम द अर्थ केव, इसको अर्थ की जो केव है यानी कि जिस गुफा में यानी जिस जगह इसकी जड़ें बसी हुई हैं उससे वहाँ निकाल दो. एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, जो स्ट्रेंथ है सारी की सारी ट्रीज़ की वो वहीं ख़त्म हो जाएगी. द सोर्स वाइट एंड वेट, द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, जो सबसे वाइट एंड वेट था एरिया वो थी जड़ यानी कि रूट्स. वही सोर्स नहीं रहेगा तो उसमें सेंसिटिव पार्ट नहीं रहेगा, जो कि पूरे अर्थ में कई सालों से हिडन थी, जो रूट्स थी उन्हीं को निकाल देंगे तो ट्री क्या हो जाएगा, एक्सपोज्ड हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा. तो अब आपको यहाँ भी शांति नहीं पड़ रही है तो आपको और बुरा तरीका बताता हूँ कि आप किसी तरीके से ट्री को मार सकते हो. Then the matter of scorching and choking. Here scorching choking means the drying of the tree and after that uprooted. अब पहले आप उसको जैसे अप्रूट कर रहे हो, उसको जड़ से निकाल रहे हो, तो उसके बाद उसको ना धूप में लिटा दो, स्क्रॉच कर हो जाएगा वो, धूप से बिल्कुल सूख जाएगा, कड़क हो जाएगा इन सन एंड एयर, और उसके जो सन एंड एयर है उसकी वजह से वो सूख जाएगा और कड़क हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, ट्विस्टिंग एंड विदरिंग एंड देन इट इज़ डन. अब वो सिकुड़ जाएगा और रिंकल आ जाएंगे और वो बिल्कुल मर जाएगा. ये होता है पेड़ को मारना. अब हमें यहाँ जीबी पटेल कोई मारने की तरकीब नहीं बता रही हैं, वो उन लोगों पे सटायर कर रही हैं कि आप किस तरीके से, आपको सर्टिफिकेशन कहाँ मिलती है, सिर्फ काटने से नहीं, आप उसे मार ही दो तो बेटर है ताकि वो जन्म ही ना ले. जितनी बार जन्म लेगा उतनी बार आप उसको मारने के लिए दौड़ोगे. तो ये आप लोगों के लिए शर्म की बात है कि आप लोग एक ट्री को इतने बुरे तरीके से मारते हो और ऊपर से फिर आप उसको एज ए नॉन लिविंग थिंग ट्रीट करते हो.
बट शायद आपको उसको उससे बुरी तरीके से करना चाहिए, क्योंकि आप इतने, यू कैन से, एक इंसान एक ऐसा जानवर है जो अपने लालच के लिए कुछ भी कर सकता है। वो ट्री तो छोड़ो, वो इंसानों को भी सुखा सकता है। तो यहाँ बात की गई है सिर्फ ट्री की, और उसके पक्ष में बोले गए ये वर्ड्स हैं, और यह सटायर किया गया उन लोगों पे जो लोग सिंपली ट्रीज़ की इम्पोर्टेंस को नहीं जानते। So this is all about the poem The Tree. So here glossary has been given and the word meaning you have written down all these things in your notebook, and after that you have to do all this thinking about the poem. That here we have the sum of the 7 questions, and this is all about the poem on cutting a tree. And here we have another poem that is Trees Only, which is just written by Joyce Kilmer. Here he wants to also say about the environment, and he was an environmentalist even. अब वो जो ट्रीज़ हैं वो उनको बचाने के लिए जी.वी. पटेल ने इतनी अच्छी पोम लिखी है. दिस इज़ द वेरी फेमस पोम without rhyme, you can say. But here says, we will see the rhyme scheme, that is AABB. Here we have the 6th stanza, the 2 of the line, that is couplets. So here the first line says, I think that I shall never see a poem lovely as a tree. अभी कहते हैं ये मैंने कोई भी आज तक इतनी अच्छी पोम नहीं पढ़ी ट्री के जितनी अच्छी. A tree was hungry month is pressed against the earth's sweet flowing breast. यहाँ ट्रीज जो इतनों सालों से अपने जो हंग्री माउथ है वो बाहर की तरफ रखता है, और अगेंस्ट किसके? स्वीट फ्लोइंग ब्रेस्ट. यानी ब्रेस्ट यहाँ एक मेटाफोरिकली किसके बोला गया है? धरती को बोला गया है, ज़मीन को बोला गया है, जहाँ ट्री जो है अपने कई सालों तक रहता है. अ ट्री दैट लुक एट गॉड ऑल डे लिफ्ट्स हर लेफी आर्म्स टू प्रे. अब जब यू कैन से जो ट्री है जो बाहर आता है तो हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ता है, और ऊपर की तरफ हम किसको मानते हैं? द हेवन, गॉड. तो वो पूरी दिन भगवान को देखता रहता है, और अपने लिफ्ट से, जो अपने लिफी हैंड्स हैं उनसे वो प्रे करता है. कि जिस तरीके से हाँ अगर हम देखना चाहें, ये हमारी इमेजिनेशन के तौर पे है. अ ट्री दैट मे इन समर वियर अ नेस्ट ऑफ रॉबिन इन हर हेयर. अब वो समर वियर में हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद रहता है, हमें छाया प्रदान करता है, फ्रूट्स देता है, और एक नेस्ट भी बनवाता है अपने हेयर्स में. अब यहाँ हर हेयर्स कौन है? हर किसके लिए पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुआ है? ट्रीज़ के लिए. और हेयर किसको बोला गया है यहाँ? हेयर आर द मेटाफोरिकली यूज्ड फॉर द ट्विग्स, टहनियों के लिए. सो ट्रीज़ कितना काम आता है हमारे, ये यहाँ बताई गई है. अपॉन हुज बोजम स्नो हैज़ लेन और हु इंटीमेटली लिव्स विद रेन. ये अब ये पूरी चीज़ें सहता है, चाहे रेन आती हो, चाहे वो स्नो फॉलिंग हो रही हो, तो वो यहाँ पर अपना सारी चीज़ों को सहता है. यहाँ बोजम होता है, यू कैन से द चेस्ट पार्ट को हम बोजम बोलते हैं. तो जो बोजम है उस पर वो अपने सहता है, यानी कि वो कहते हैं ना दैट वो चीज़ों को बहुत अच्छे से बियर आउट करता है. तो यहाँ जो ट्री है उसको बोजम के तौर पर, उसकी चीज़ों को बोजम के तौर पर बोला गया है. दैट मीन्स यहाँ पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुआ है. पोइट्स आर मेड बाई फूल लाइक मी. poems are made by fool like me, but only God can make it true. अब जिस ये poems हैं वो मेरे जैसे ही fools लोग बनाते हैं, बट जो ट्री है वो गॉड के द्वारा ही बनाया गया होता है. यह बताया गया है वोल्टेयर के द्वारा, वैन ईटिंग फ्रूट, जब आप फ्रूट खाते हो तो क्या आप एक ट्री को प्लांट करने के बारे में नहीं सोच सकते? सो यहाँ पे भी वही बात की गई है, ट्रीज़ को हमें काटने से पहले कई बार सोचना चाहिए. हमें ये वो, क्योंकि वो हमारे लिए कितना कुछ करता है. और यहाँ उसने अपने को फूल किस लिए बोला है? क्योंकि उसने आप पूरी एंटायर ह्यूमन बीइंग को फूल बोला है. कि हम सिर्फ पोम लिखते रह जाते हैं और लोग इन्हें काटते रहते हैं. हमारे पोम लिखने का फ़ायदा तब होगा जब आप इसे क्रिएशन, इसके गॉड से माफ़ी मांगो, और आपको ये पता चले कि एक आर्टिस्ट अपनी चीज़ों को कितने प्यार से बनाता है. यानी कि पोइट जो है वो भी एक आर्टिस्ट है, गॉड भी वो भी एक आर्टिस्ट है. लेकिन वो एक पोइट जो है वो एक पोम लिख देता है जिसे लोग पढ़े ना पढ़े, बट ट्री एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी के काम आती है. हमें उसके महत्व को देखना चाहिए. वी हैव टू सी द सिग्निफिकेंस ऑफ आवर पोम.
and as well as we have to go for the significance of these trees. We should not cut them, we should be environmentalist, and as well as we have to follow all the certain rules which was just available to us from our government. I hope this has been clear to you, all these poems as well as this very part of Maria Sharapova we have already been done. So we'll meet in the next video with the next chapter. Till then, take care. We'll draw you back with a soon all these things. Thank you.